Okay, now again छांदोग्य उपनिषद Canto 1 chapter 6 verse number 6. So यहाँ पे लिखा हिरण्य संशु हिरण्य केशः अप्रंखाद सर्व एव सुवर्णः. The fine hair on the Lord's face is golden in color, and the hair on his head is all shines like gold. From the tip of his toes to the top of his head, that self-manifest Supreme Lord is golden. Golden. पांव से लेकर सर तक श्री गौरंग महाप्रभु is golden. श्रीमती राधा रानी का भाव लिया ना इन्होंने, इसीलिए. So it's covered by that complexion of Shrimati Radhika. Yeah, we'll get into the detail later. Okay. By his causeless words, he is all-pervading super soul, is everyone's heart. Sriman Mahaprabhu engages the living beings in that process by which they are able to attain the supremely flawless gem of pure bhakti for him. Shuddha Bhakti. So this is from Shvetashvatara Upanishad. Okay, now Chandogya Upanishad. Situated in the holy abode Brahmapura, there is a marvelous city which takes the shape of the 8-petaled lotus. A place called Dahara, known famously as Mayapur, okay ji, is at its center. This is the abode of the Supreme Lord Sri Chaitanya, the Super Soul, and its most interior region is called Antardvip. छांदोग्य उपनिषद लिखा है अंतर्द्वीप के बारे में. So अंतर्द्वीप महाप्रभु प्रकट हुए हैं in the center. आसपास all petals हैं. We'll take the diagram of Navdeep, तो उसको और डिटेल में जाएंगे हम लोग later on. भविष्य पुराण जैसे बताया कौन कौन अपीयर होने वाला सबके बारे में, तो इसमें भविष्य पुराण में भी आया महाप्रभु के बारे में. Oh ascetics in Kali Yuga, all the devotees will see me dressed as a sannyasi whose entire body is washed by tears of joy and covered with horripulations. ऐसे चैतन्य महाप्रभु का संन्यास is a real संन्यास. संन्यास का मतलब होता है मैं किसी का स्वामी हूँ और मैं उसको त्याग रहा हूँ, that is संन्यास. पूरे जगत के स्वामी कौन है? कृष्णा. कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य त्यागा and he became a sannyasi. His sannyas is very unique. हमारे केस में अगर somebody becomes a sannyasi, he gets the understanding क्या मेरा कुछ था ही नहीं, मेरा कुछ था ही नहीं. I was living in an illusion that I am having so much, my wife, my children, my husband, my wealth, my property, my this, my that. I became free from this illusion कि मेरा कुछ था ही नहीं actually. उसको बोलते संन्यास हमारे केस में. But in the case of Sri Chaitanya Mahaprabhu, उन्हीं का तो है सब कुछ. He is the Lord. उनका संन्यास लेना is very unique. उन्होंने वाकई में संन्यास लिया है. So that way his संन्यास is unique. उनका संन्यास ही वास्तविक संन्यास है. हाँ, अब देखिए ना पहला कपड़ा जो हम पहनते हैं वो है लंगोट, उसमें जेब होती है नहीं. जब कोई बंदा मरता है कफन, उसमें जेब होती है नहीं, बीच में जेब आ जाती है बस. उसमें उसका दिमाग खराब होता है, मेरा है, मेरा है, मेरा कुछ है. अरे बांगड़ू, तेरे को पहला कपड़ा लंगोट, जेब, लो जेब, कफन, जेब, नो जेब, बीच में जेब आ गई, जेब, जेब भर लो, जेब भर लो, जेब भर लो. पीछे और जेब दे दी, आगे और जेब दी, यहाँ भी जेब दे दी, यहाँ भी जेब दे दी. सर जेब तो ये रह जाएगी. तो बेसिकली जब कोई रियलाइज करता है यार जेब तो फालतू है यार. हमारे डोनर बोलते हैं, कह रहे थे एक बार, मरते वक्त जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में फालतू रह गया उतना आपने फालतू काम किया, एक्स्ट्रा काम कर दिया. क्या यार मर गया पैसा अकाउंट में रह गया. तो बेसिकली सन्यासी एज जीवा who is a sannyasi, he realizes nothing was mine. But in the case of Mahaprabhu, everything is his. उन्हीं का तो है, वो त्याग रहे हैं. उनका संन्यास is very very special. मुंडक उपनिषद के अंदर है, Canto 3 chapter 1 verse number 3 के अंदर. When someone sees Supreme Lord, he becomes full of knowledge. Such a learned soul consequently renounces material attachment, pious and impious activities, and his body created from material nature as well. Thus becoming completely free from matter, he gains his supreme friend, Ishvara. That supreme soul has an attractive golden complexion, is the creator of the universe and the father of Lord Brahma. तो ब्रह्मा जी के पिताजी का नाम कौन? विश्वम्भर, श्री गौरंग महाप्रभु. ये कहाँ दिया है? मुंडक उपनिषद के अंदर. लोगों को उपनिषद वेद बड़े पसंद होते हैं ना. अच्छा ठीक है, ये लो, नाउ फॉलो. क्योंकि
हर युग में भगवान युग अवतार भी लेते हैं। यानी युग अवतार का मतलब होता है कि उस युग में आत्म साक्षात्कार की विधि देने के लिए जो आएंगे अवतार, उनको बोलते हैं युग अवतार। भगवान के कई प्रकार के अवतार है, समझाते हैं, उसमें नहीं जाऊंगा। पुरुष अवतार भी हैं, भगवान के गुण अवतार भी हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भगवान के गुण अवतार भी हैं, मनवंतर अवतार भी होते हैं। तो इस प्रकार से कई तरह के अवतार, शाक्तवेश अवतार भी हैं। तो इस तरह से उनमें एक होते हैं युग अवतार। तो युग अवतार का मतलब है कि उस युग में आत्म साक्षात्कार की विधि जो देने के लिए आएगा वो होता है युग अवतार। तो सतयुग में कौन आए थे? हंस अवतार। हंस अवतार ने दिया मेडिटेशन, किस प्रकार से ध्यान लगाया जाता है, तो ध्यान की विधि दी हंस अवतार ने। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में आते हैं यज्ञ अवतार। तो और यज्ञता कौन सा विधि देते हैं? यज्ञ, स्वाहा स्वाहा, यज्ञ अवतार। फिर आता है द्वापर युग। द्वापर युग में आते हैं भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव कृष्ण के रूप में, और वो देते हैं डीटी वर्शिप, यानी कि भगवान की विग्रह सेवा। ठीक है जी। और फिर कलयुग में हरिनाम संकीर्तन देने के लिए, कलयुग का धर्म क्या है? कलयुग में जो आत्म साक्षात्कार का तरीका है वो है भगवान का नाम लेना। ठीक है, तो ये विधि जो देने के लिए आते हैं वो आते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए ये है वास्तव में युग अवतार, इस युग के अवतार। वैसे भगवान बोलते हैं त्रियुगी, यानी कलयुग में भगवान वैसे नहीं आते, पर ऐसा क्यों? हुई तो आए, ऐसा कैसे? तो भगवान त्रियुगी कहलाते हैं क्योंकि भगवान कोई लीला अवतार ऐसा नहीं करते। लेकिन वैसे महाप्रभु ने भी लीला की, लेकिन ये लीला छुपी हुई है। तो इसलिए वैसे ये भी लीला तो ये भी करते, लीला अवतार ये भी है, लेकिन साथ साथ में ये युग अवतार भी है, क्योंकि ये युग धर्म देने के लिए आते हैं कलयुग में, और वह है भगवान का नाम। और ये कलयुग में भगवान का नाम ही चलने वाला है। इसीलिए आप देखो जितने और धर्म भी है ना, उनमें भगवान के नाम की संस्तुति है। जैसे क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है, बाइबल में लिखा है, द किंगडम ऑफ गॉड इज रिसाइडेड बाय दोज हु चैंट दाई नेम। जो लोग प्रभु का नाम लेते हैं वो भगवान के नाम में निवास करते हैं। तो बाइबल में लिखा है। इस्लाम के अंदर भी है, अल्लाह जैसे सबसे महान है, अल्लाह हो गया, अर रहमान, अर रहीम, सबसे रहमत वाला, सबसे दया वाला। तो इस प्रकार से देखते हैं उनमें भी 99 नेम्स ऑफ अल्लाह है, 99 नाम है अल्लाह के। तो कलयुग में क्योंकि नाम ही चलेगा और कुछ चलने वाला नहीं है, इसीलिए नाम की विधि देने के लिए आते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो कलयुग के वास्तव में यह है युग अवतार। ओके, सो एक तो ये कारण है कि भाई महाप्रभु आते हैं क्या देने के लिए? भगवान का नाम देने के लिए आते हैं। लेकिन साथ ही ये क्या करने के लिए आते हैं? ये वो प्रेम देने के लिए आते हैं जो कि और कोई अवतार नहीं देता। ये वो प्रेम देने के लिए आते हैं। वैसे ये प्रेम जो है भगवान श्री कृष्ण छुपा छुपा के रखते हैं, सबको नहीं देते, छुपा कर रखते हैं। पहले देखो योग्यता है कि नहीं है। भगवान पूरी परीक्षा लेकर करके उस बार देते हैं। पहली परीक्षा होती है हमारी दुखों के कारण। कई लोग दुख में पागल हो जाते हैं और प्रभु को छोड़ देते हैं, कहते क्या दिया उस प्रभु ने, दुख ही तो दिए, छोड़ो यार उसको। तो प्रभु को छोड़ देते दुख में आकर के। दुखों की जो परीक्षा वो जो पार कर लेता है कि वह दुख आए लेकिन फिर भी भगवान का साथ नहीं छोड़ा, अरे फिर उनकी परीक्षा रहती है माया। ये कहती है इसको सुख में पागल कर देते हैं, सुख में पागल करके इसको भगवान को बुला दूंगी। तो कई लोग सुख में पागल होकर भगवान को बुला देते हैं। बस ये सब बढ़िया टाइम आ गया, अच्छा मेरा धंधा वगैरह बढ़िया चल रहा है, मेरी शादी वादी हो गई है, मेरे बच्चे वगैरह हो गए, भूल जाओगे। सो कुछ लोग दुख में पागल होकर के भगवान को छोड़ देते हैं, कुछ लोग सुख में पागल होकर के भगवान को छोड़ देते हैं। और इन दोनों को भी जो पार कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत दम है भाई। उसकी फिर कृष्ण परीक्षा लेते हैं। मतलब ये दो टेस्ट पार करने के बाद कई बार लोग ऐसे बोल देते हैं भगवान इतनी परीक्षा ले रहे हैं, आए तुम इतना ढक्कने आते, तुम आएगा परीक्षा लेंगे भगवान। 99.99% लोग तो हम लोग अपने कर्मों को भुगत रहे हैं और उसका कोई विरले होते हैं जो सुख की परीक्षा देते हैं। फिर जाकर कोई विरला होता है जो जिसकी भगवान कृष्ण परीक्षा देते हैं। उसके बाद फिर भगवान कृष्ण अपना प्रेम देते हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत सारा टेस्ट है भाई। एंट्रेंस एग्जाम 1 2 3 तब जाके एंट्री होगी। तो ये बहुत ही विशेष धन जो है भगवान के प्रति प्रेम का, इसको तिजोरी में छुपा छुपा के रखते हैं भगवान श्री कृष्ण। और कोई विरला होता है, कोई जो लायक होता है, उसको ये प्रेम देते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत अमीर व्यक्ति हो, बहुत अमीर आदमी हो, तो वैसे तो अपने धन को तिजोरी में रहते, तिजोरी के अंदर एक और तिजोरी, उसके अंदर एक और तिजोरी, तिजोरी के अंदर तिजोरी, उसमें वहां अपना धन रखेगा। लेकिन कभी ऐसा हो कि ना वो अगर दारू पिया हो, उसको होश नहीं है अब, तो क्या करता है, तिजोरी खोल देता है वो, ले लो भाई, ले लो भाई, आ जाओ ले लो भाई। अरे भाई दारू पिया हो भाई, इसने तो तिजोरी खोल दी अपनी। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब ये धुत हो जाते हैं, धुत हो गए भगवान, अरे ऐसा कैसे? हाँ,
जब ये श्रीमती राधा रानी के प्रेम में धुत हो जाते हैं, पूरी तरह से मदहोश हो जाते हैं, तो फिर वो कृष्ण प्रेम का जो धन है जो छुपा छुपा के रखा था और किसी विरले को देते हैं, उसको तिजोरी खोल देते हैं कलयुग में आकर के, ये ले लो ले लो ले लो, कृष्ण प्रेम ले लो ले लो, आप ले लो ले लो। किसी में अगर कोई योग्यता नहीं भी हो, आ जाओ भाई योग्यता दे देंगे आपको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो इसलिए ये प्रेम दे देते हैं, क्योंकि अब ये क्या हो गए, धुत। दारू में नहीं, श्रीमती राधा रानी के प्रेम में इतने धुत हो गए कि फिर ये प्रेम बांटते। इसलिए कलयुग के अंदर वैसे निकट्टू लोग हैं हम लोग, हमसे कोई होना देना है नहीं, हम लोग आलसी लोग, भक्ति को लेकर के सुपर डुपर आलसी लोग हैं कलयुग के लोग। तो इसलिए ऐसे लोग जो मंद हैं, सुमंद हैं, दिमाग इनका बंद है, कोई योग्यता नहीं है इनके अंदर, लेकिन फिर भी कलयुग में अरे सबसे बेहतरीन चीज देने के लिए आते हैं स्वयं भगवान। ऐसा क्यों है कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो स्वयं भगवान है, क्योंकि वास्तव में वो है छन्नावतार। क्या है छन्न, मतलब कि छुपे हुए अवतार। उनके बारे में शास्त्रों में कई सारे श्लोक आते हैं उनके भविष्य के बारे में कि वो वाकई में आते हैं। और है चैतन्य महाप्रभु कौन, स्वयं राधा कृष्ण ही, अवतार भी नहीं है, स्वयं राधा कृष्ण ही है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, स्वयं राधा कृष्ण ही है जो कि आए। जैसे कि भगवद गीता में एक बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, परित्राणाय साधूनाम, और आगे धर्म संस्थापनार्थाय। भाई ये तो बी आर चोपड़ा जी ने याद कराई थी सबको, 3 श्लोक याद कराए उन्होंने, यही यदा यदा धर्मस्य, राइट। और साथ में वाला श्लोक और 2.47 कर्मण्यवाधिकार से 3 श्लोक याद कराई थी, राइट। तो इसलिए कौन सा श्लोक है, परित्राणाय, परित्राणाय साधूनाम, सुना है ना, विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पुराने दिन याद आ गया। सो संभवामि युगे युगे, मतलब कि भगवान युग युग में आते हैं। तो ऐसा बोलते थे ना, संभवामि प्रति युगे, ऐसा क्यों भगवान कृष्ण ने बोला संभवामि युगे युगे, ऐसा क्यों? भगवान की ग्रामर खराब है। युगे युगे का मतलब है जब भगवान कृष्ण खुद आते हैं, अवतार नहीं, जब वो खुद आते हैं, क्योंकि सारे अवतारों के स्रोत है कौन, भगवान श्री कृष्ण। तो युगे युगे का मतलब है द्वापर युगे एंड कली युगे। द्वापर युग में स्वयं भगवान खुद आते हैं, कोई अवतार नहीं लेते, खुद आते हैं। बल्कि उसी तरह से कलयुग में भी भगवान खुद आते हैं, अवतार नहीं, खुद स्वयं आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। इस प्रकार से शास्त्रों में भी उनके बारे में आता है, जैसे कि भविष्य पुराण के अंदर बताया, नॉट भविष्य पुराण सॉरी, गरुड़ पुराण के अंदर एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है इस बात से, अहम पूर्णो भविष्यामि, मैं भविष्य में अपने पूर्ण रूप में आता हूं। अच्छा, युग संधो विशेषतः, जब 2 युगों की संध्या होती है, यानी कि द्वापर युग और कलयुग। अभी जैसे संध्या युग चल रहा है, ये संध्या का समय, संध्या ऐसा नहीं ये शाम का समय है, संध्या वो नहीं, संध्या मतलब कि जंक्चर, द फेज ऑफ ट्रांजिशन, यानी कि एक युग से दूसरे युग में बदलना। तो द्वापर युग जब शिफ्ट करता है कलयुग में, तो बीच में ये 10,000 साल का समय आता है, उसकी शुरुआत में आते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो इसे यहां लिखा है युग संधो विशेषतः, 2 युगों की संध्याओं में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। अच्छा, कैसे आते हैं, मायापुरे नवद्वीपे, मायापुर नाम का स्थान है, उसमें नवद्वीप है, वहां पर प्रकट होते हैं। अच्छा, कौन है, भविष्यामि शची सुता, यानी शची माता, शची माता है कौन, यशोदा मैया। यशोदा मैया आई थी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में, शची माता, शची सुता, भविष्यामि, मैं आऊंगा शची सुता, शची माता के पुत्र के रूप में आऊंगा। तो इस प्रकार से पुराणों में भी उनका मेंशन आता है। और सुबह हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से भगवान आए हैं, तो उनके आने का कारण क्या है। उनके आने का कारण ये है, उनके 3 कारण है आने का। एक तो ये कारण है कि वो जानना चाहते मेरे में ऐसा क्या है कि मेरे भक्तों को बड़ा आकर्षण होता है मेरे से। एक समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे, तो ना फर्श बहुत ही क्लीन, एकदम एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्लीन। तो उसमें उन्होंने खुद की परछाई देखी भगवान श्री कृष्ण ने। जब खुद की परछाई को देखा, वो हैरान हो गए, तो ये कौन व्यक्ति है, इतना सुंदर, ये कौन है ये। तो उनको आकर रुक्मिणी जी ने कहा, ये आप ही तो है। अच्छा, मैं इतना सुंदर हूं क्या। भगवान को भी नहीं पता उनके अंदर क्या क्या है, भगवान को भी नहीं पता।
ठीक है जी। तो इसीलिए भगवान ने एक बड़ा विशेष अवतार लिया, ये जानने के लिए भाई मेरे अंदर क्या है, दूसरा ये मेरे भक्तों में क्या है, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन, श्रीमती राधिका, कि श्रीमती राधिका का प्रेम वो क्या है, पहला क्या मैं क्या हूं, दूसरा क्या उनमें क्या है, और जब उस प्रेम से मेरे को प्रेम करती है तो उनको मिलता क्या है, तीसरी बात। तो इन तीन चीजों का अनुभव करने के लिए महाप्रभु आए।